आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ग्रोइंग विद द सोशल मीडिया। स्टूडेंट्स को प्रेशर फील होता है, जैसे मार्क्स का, परफेक्ट दिखने का, रिलेशनशिप्स का प्रेशर, अनरियलिस्टिक अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो वो फुलफिल होने ही नहीं वाले। फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी जो सेट हुए हैं। जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरनेट जो है वो एक कॉइन के जैसा तो वो है। गैप अगर उसको कम करना है तो उसका इनिशिएटिव पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा। आज भी क्यों बहुत सारे लोग जो है वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या साइकेट्रिक काउंसलिंग लेने से डरते हैं। देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस। कम्युनिकेशन गैप ब्रिज करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ये उन कॉन्वर्सेशंस के बारे में है जो आज भी कई स्टूडेंट्स या कई पेरेंट्स शुरू करने से डरते हैं। समवेयर राइट नाउ अ टीनेजर इज़ प्रिटेंडिंग टू बी ओके। वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, वो उनके असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ भी अपलोड कर रहा है। बट कहीं ना कहीं वो टूट चुका है, वो थक चुका है। ही और शी इज़ टायर्ड। ही और शी हैज़ now come to this point that they are not willing to continue the life and not happy in this current life. Today let's just not talk about them, but rather let's talk to them. I am Yuraj Barsale, final year MBBS student and a proud member of my organization, Care Like a Mother Does. We are honored to have with us Dr. Umesh Atram sir. Sir is psychiatrist by profession and sir has vast clinical experience in adolescent and mental health. Sir, we welcome you. थैंक यू सो मच। Today, in this episode of Med and Mics, we would like to discuss more about the issues regarding mental health, adolescent, emotional intelligence, suicidal tendencies, and many more. To start with, sir, this podcast, let's keep it as a conversation rather than a question answer session. यस। Let's start with a scenario. A 16-year-old girl smiles in school. She laughs with her friends, but suddenly when she comes home, she feels a little bit tired. She feels drowsy. She keeps crying. On the contrary, a boy who was once a confident, he used to play sports. Now he's feeling underconfident. He's not feeling okay. Somewhere he's feeling that he is judged by the society, or somewhere he's feeling that he is not enough to maintain the societal standards. Sir, what is really happening inside these students? सी व्हाट वी कैन से इज़ कि ये सब जो बच्चे हैं दे आर इमोशनली डिस्टर्ब, है ना। देर आर मेनी मोर रीजन्स वी कैन कंसिडर अबाउट इट, है ना। सपोज एज यू टॉक्ड अबाउट टू सिनारियोज, Yes. इट कैन बी सेड कि समवेयर देयर गोल्स आर ब्लॉक्ड, है ना। वट एवर द गोल्स आर, एंड ड्यू टू दैट they are facing some kind of frustration, and that frustration is leading to such kind of psychological disturbances. So we can say that these disturbances are okay to be normal, but if they are pursuing through time, we need to take a psychiatric help. Yeah, we can say that, but see, the thing is, if you are facing a minor kind of issue, है ना, then you can go to a counselor and talk to him. But if you are facing a larger issue, and if you are facing depression, like if you have a clinical depression, then you have to go to a psychiatrist and take help. Sir, many students feel like in this situation that maybe I'm just overthinking. Even my colleagues are in the same phase or the same age. They are dealing it with a very good way or in a very good manner. And many their friends and colleagues say them that even they try to talk about them, they say that it's just a phase. Sir, can you like justify in short words that what it's just a phase means? See, उसमें ऐसा है कि we can say कि it is just a phase, है ना। जैसे अभी आपने बोला कि ओवर थिंकिंग एक कॉमन इशू है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग एक टर्म ही थोड़ी सी गलत है ना, क्योंकि थॉट्स जो है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इफ़ यू फोकस ऑन दोज थॉट्स तो वो ओवर थिंकिंग लगता है। नॉर्मली ऐसा है कि इवन इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, है ना, तो 60 to 70,000 थॉट्स आके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा, है ना। बट व्हेन यू फोकस ऑन पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट, तो वो बार बार उसकी चेन बनेगी और वो ओवर थिंकिंग लगेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और जब आप डिस्टर्ब हो किसी चीज़ से, जैसे कि मैंने अभी बोला कि इफ़ योर गोल्स आर ब्लॉक्ड,
तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। तो उस टाइम पे हाउ यू आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपके पास ऑलरेडी क्या स्किल्स है कोपिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उस चीज़ को अच्छे से फेस कर रहा हूँ, है ना, और थोड़ा सा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस मुझे हो रहा है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। सी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ऐसा है कि अगर कुछ चीज़ होती है तो उसका रिएक्शन हम लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में होएगा। एंजाइटी और फियर जो भी चीज़ें हैं वो एबनॉर्मल नहीं है, एक सर्टन लिमिट तक, एक सर्टन फेज तक वो हमारे लिए यूज़फुल है, बट वो जब एक्सेस हो जाते हैं तो फिर उसको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डे टू डे इश्यूज़ में जो होता है तो उसको हम लोग फेस बोल सकते हैं, लेकिन उसका सीवियरिटी जब बढ़ता है तो फिर उसको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स जस्ट अ फेज बोलना ठीक है, बट कौन बोल रहा है या कौन, मतलब लाइक if it's just a phase is by a doctor, it's a very different statement than it's just a phase by any student or his colleague or his parents who are not educated well enough or doesn't have any clinical or psychiatric background to the student. Exactly, it all depends on who is saying this. Yes. है ना, when you said कि you are educated to talk about, है ना, तो I would say कि education जब हम लोग बात करें तो it is not all about the academic education. आप थोड़ा इमोशनली भी एजुकेटेड रहेंगे तब वो आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे, नहीं तो आप यही बोले कि नहीं इट्स जस्ट अ फेज, हो जाएगा, निकल जाएगा, नॉर्मल है, सबको होता है, तो ऐसा लोग बोलेंगे। सर आजकल स्टूडेंट्स को प्रेशर फील होता है, जैसे मार्क्स का, परफेक्ट दिखने का, रिलेशनशिप्स का प्रेशर, फिट इन होने का, या जो फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी जो सेट हुए वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, वहाँ तक उनको पहुँचना। तो सर ये प्रेशर से स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में कैसे डील कर सकता है? उसमें ऐसा है कि मुझे कहाँ फिट होना है ना, उसके लिमिटेशंस मुझे पहले से पता होने चाहिए, है ना। उसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सपोज कोई कैट है और वो आईने में देख रही है ना, और वो खुद को आईने में लायन जैसा देख रही है, ठीक है। तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, कैट कभी भी लायन नहीं बन सकती। तो वो जो रियलाइजेशन है वो शुरुआत से अगर रहेगा, सी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स के बिहेवियर में ये चीज़ें देखें हम कि ये रियलिटी है और ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, तो वो अगर बच्चे देखेंगे तो वो सीखेंगे। अब ऐसा है कि रियलिटी और जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। अनरियलिस्टिक अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगा तो वो फुलफिल होने ही नहीं वाले, है ना। उसका रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब रियलाइज़ होगा तो पता चलेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और को देख के उसी शूज़ में जाना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मुझे प्रेशर फील होगा। जैसे मैंने बोला कि गोल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक एनिमेशन में कुछ करना है और मैं किसी को देख के डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक, उससे प्रेशर तो फील होगा ही। अगर प्रेशर फील भी होता है तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप प्रोफेशनल से बात करो, वो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन वो देंगे, बट एक लिमिट तक वो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे आपको। सर सो एज यू सेड कि आप कोई प्रोफेशनल से बात कर सकते हो या काउंसलिंग सीख कर सकते हो। सर पर जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ग्रोइंग विद द सोशल मीडिया। बिल्कुल, कि सोशल मीडिया ही नहीं ग्रो हो रहा है, स्टूडेंट्स भी सोशल मीडिया के साथ ही ग्रो हो रहे हैं। और सोशल मीडिया हर चीज़ का एक व्यू जो रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में जो सेट करता है, इट इज़ अ वेरी वेग व्यू, इट इज़ वेरी फार अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी। और जो स्टूडेंट्स है वो कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं और हेल्प सीख करने के लिए भी वो सोशल मीडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल, लाइक दे वुड लुक अप टू एनी काउंसलर और लाइक एनीवन हु इज़ giving knowledge about the counseling or who doesn't have any psychiatric background or who doesn't have a proper professional background, and they give knowledge about the certain things to the students. So how is social media shaping students' future, or how is social media in general shaping the youth in terms of mental health and adolescent health? सी इसके दो पार्ट्स हैं। जैसे अभी आपने बोला कि अगर किसी को हेल्प सीख करनी है तो व्हाट दे डू, दे गो टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड लुक फॉर हेल्प। तो वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
बट जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो कैपेबल है कि नहीं, ये सब देखने का जो ज़रिया है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट ये है कि कुछ लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड है और वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसके दो पार्ट्स है। सोशल मीडिया जैसे निगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा है ना, वैसे ही कुछ लोगों को एक अच्छा हेल्प भी मिल रहा है। जैसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके खुद के चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर, और वो अच्छी हेल्थ प्रमोशंस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो वो जो क्वालिफिकेशन देखना है, वो जो देख रहा है उसको चूज़ करना है ना। अगर उसने वो देख के, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, है ना, तो कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हम लोग ब्रांडिंग देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, वो चीज़ का रिव्यू लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी सोशल मीडिया पे जब लोग जाते हैं हेल्प सीकिंग के लिए, तो ये देखना ज़रूरी है, तभी उनको एक प्रॉपर चैनल और प्रॉपर हेल्प मिलेगा और दे विल गेट प्रॉपर हेल्प। सर सो वही कि हेल्प सीख करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस मोड से आप हेल्प सीख कर रहे हो, या किस प्रोफेशनल से आप हेल्प सीख कर रहे हो। जैसे आप डे टू डे लाइफ में बेसिक चीज़ों को उसके स्टैंडर्ड्स देखते हो, लाइक सपोज कोई फूड खरीदना रहा तो उसमें ISI मार्क्स, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करते हो। इन द सेम बेसिक वे इट्स वेरी इजी टू चेक द पीपल यू आर सीकिंग हेल्प, देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। Rather than children, I would like to say parents must be more aware that what their child is seeing, or like where the child is going, where the child is seeking help. With continuing the same point, sir, I would like to put my next question. बहुत से पेरेंट्स जो है वो प्यूबर्टी, सेक्सुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सब चीज़ों के बारे में अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उसका कारण ये होता है कि बच्चे जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, और वी ऑल नो दैट कि बच्चे अगर पेरेंट्स से नहीं सीखेंगे तो बेसिक है वो इंटरनेट से सीखेंगे, और इंटरनेट जो है वो एक कॉइन के जैसा है, जैसे टू साइड्स है उसके। तुम जैसे उसको यूज़ करेंगे और या फिर तुम जैसे उसको परसीव करेंगे, वो टाइप में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो सर, कैन वी से दैट कि दिस साइलेंस इज़ मोर डेंजरस दैन the awkward conversations which would have take place? बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ, तो मोस्ट ऑफ जो पेरेंट्स है दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, है ना। क्योंकि उनके खुद के जो इनिबिशंस है वो उनको रोक लेते हैं, क्योंकि उनका जैसे रेयरिंग हुआ है, उनका जैसे ग्रोथ हुआ है इस सोसाइटी में, उसमें यही उनको बताया गया है अभी जो पेरेंट्स है कि इट इज़ नॉट गुड थिंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी इन पब्लिक, है ना, इसलिए वो नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर गैप जो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, तो वो गैप अगर उसको कम करना है तो उसका इनिशिएटिव पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा। बिकॉज सी, जैसे चीज़ें बदलती है, पहले ऐसा था कि टेलीफोन जो था वो हर घर में एक ही था, है ना। अब जैसे कि सबके पास फ़ोन है, अब हर जनरेशन के जो लोग हैं वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने फ़ोन को अडॉप्ट कर लिया है, वैसे ही ये सब जो चीज़ें हैं, किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए और किस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इस बारे में भी पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स बात नहीं करेंगे, पेरेंट्स उसके बारे में नहीं जानेंगे, दे विल नॉट बी कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इट, है ना। वो खुद के जो इनिबिशन है वो उनको निकालने बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि अगर उनसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो बच्चे जाके कहीं और से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और उसका जो सोर्स है वो कैसा रहेगा वो हम लोगों को पता नहीं, है ना। वो कुछ भी रह सकता है, और फिर उससे मिस इन्फॉर्मेशन जाएगा, और वो जो सेक्सुअलिटी के बारे में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। So we can say that asking help is not attention seeking, or rather it's inbuilt self-respect only. With the same continuation, sir, we will go to further conversation. Sir, many students still hesitate to seek help, maybe because they find that their teachers would judge them, or rather their friends would judge them. What would the society would say them? This is very perception, and like we are all living in 21st century. Sir, आज भी क्यों बहुत सारे लोग जो है वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या साइकेट्रिक काउंसलिंग लेने से डरते हैं? क्या उसका कारण बस अवेयरनेस की कमी है, या वी डोंट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या देर इज़ स्टिल अ लैक, और देर इज़ स्टिल अ गैप विच वी नीड टू
we need to take over? दोनों चीज़ें हैं. देयर इज़ डिफिशिएंसी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस, है ना. और अवेयरनेस के बारे में अगर बात करेंगे तो अवेयरनेस इज़ गोइंग ऑन, बट उसका जो स्पीड है और उसका जो एक्सटेंट है वो अभी भी उतना है नहीं. बट जब से सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें के बारे में बात होनी चालू हुई है तो आई वुड से कि द अवेयरनेस इज़ क्वाइट गुड. क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एडोलसेंट एज के जो अभी बच्चे हैं ना, दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 16 ईयर्स में मुझे ऐसा पता चला है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि बच्चे जो है एडोलसेंट एज के वो खुद होके पेरेंट्स को लेके मेरे पास आ रहे हैं, है ना. और उनके जो वर्ड्स होते वो थे कि सर मुझे काउंसलिंग करवाना है, सर मुझे थेरेपी सेशंस लेने, मुझे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज चालू है जो मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए. तो ये वर्ड्स बच्चे यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अवेयरनेस हो रहा है, बट उसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा अभी स्लो है, बट वो बढ़ेगा. अब ये स्टेज आने के लिए मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगा है. तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मोर अवेयरनेस तो और मुझे लगता है कि 30-40 साल और लगेंगे. 30-40 साल बहुत ज़्यादा है जिस तरह से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अभी है. तो मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा और मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस बहुत अच्छा बढ़ेगा. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की डेफिशिएंसी के बारे में अगर बात करेंगे तो साइकेट्रिस्ट का जो परसेंटेज है बहुत कम है, लेकिन अभी देखा जाए तो उसका नंबर अभी बढ़ रहा है. क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वहाँ पर साइकेट्री में बहुत अच्छे पीजीज चालू हो गए. तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वो भी नंबर बढ़ेगा और ये जो इशू है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा. Sir, so taking psychiatric help doesn't mean that you're weak. It just means that you're brave enough, that you chose yourself over the society and over all the people, those who were taunting you or those who were refraining you from taking the psychiatric help. Exactly. Sir, how would we differentiate between the mood swings or like the teenage mood swings and actual suicidal tendencies which a teenage boy or a children or a school going can have? See, mood swing is a very lay term, it's very common term. Usually common people इस term को use करते हैं. मूड स्विंग जब लोग बोलते हैं इसका मतलब है कि मैं बहुत इरिटेबल हो रहा हूँ, है ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ जा रहा हूँ, है ना. इसी को लोग मूड स्विंग्स बोलते हैं. ऐसा कोई साइंटिफिक टर्म साइकेट्री या साइकोलॉजी में है नहीं मूड स्विंग, ठीक है. तो अगर मुझे डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, है ना, तो वो जो मेरा रिएक्शन है वो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन है. अगर मैं किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उसके लिए मेरा जो भी रिएक्शन है, समझो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो दैट इज़ ओके. एंड अगर मैं कहीं किसी नई सिचुएशन में हूँ, किसी नए सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ एंड इफ़ आई एम फीलिंग थोड़ा सा एंग्शियस, तो दैट इज़ ओके. क्योंकि एंजाइटी और फियर ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है सिंस इवोल्यूशन, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना. तो वो चीज़ें हम लोगों को हेल्प करती है. और इसीलिए क्या है कि मूड स्विंग को हम लोग ऐसा लेबल नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना. लेकिन उसका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, इफ़ यू आर इरिटेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 वीक हो गए, 4 वीक हो गए, एंड यू आर इरिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग देख सकते कि नहीं चलो इसको अटेंशन की ज़रूरत है. और जब सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में अगर बात करेंगे तो वो तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ है. व्हेन यू आर डिप्रेस्ड एंड इट इज़ एक्सट्रीम डिप्रेशन, तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज चालू हो जाती है. सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल बिहेवियर इज़ एन इमरजेंसी फॉर अ साइकेट्रिस्ट. तो वो एक एक्सट्रीम चीज़ है और उसके लिए अटेंशन और ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत होती है. Sir, as we have came to the treatment part, sir, what treatment are available on the school basis or on the government hospital basis, or we can say in the society, which are accessible, affordable, and which are very useful in reducing all the psychiatric issues or all the mental health issues a student is facing? See, it's all depend upon what kind of issue you are facing, है ना. क्योंकि there are more than 450 disorders in psychiatry, ठीक है. उसी में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है. तो इफ़ यू आर फेसिंग डिप्रेशन, इफ़ यू आर फेसिंग एंजाइटी,
तो मोस्टली कंसल्टेशन जो पार्ट होता है वो इनिशियल पार्ट होता है, तो उसी में ये पता चलता है कि क्या करना चाहिए। माइल्ड और मॉडरेट टाइप के अगर इश्यूज़ है तो उसके लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मॉडरेट एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, डाइटरी चेंजेस, है ना, ये सब चीज़ों में अगर कुछ काम करेंगे तो माइल्ड एंड मॉडरेट डिप्रेशन को हम लोग डील कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर लुकिंग एट द सीवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन और इफ़ यू आर लुकिंग एट सीवियर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, तो उसके लिए मेडिसिन ही ऑप्शन है, क्योंकि वो इमीडिएटली हेल्प करेगा। फिर एक और ऑप्शन है कि काउंसलिंग, थेरेपी एंड मेडिकेशन, इन दोनों का कॉम्बो आप यूज़ करो, है ना। रिसर्च के फाइंडिंग्स ये है कि इफ़ यू यूज़ द कॉम्बो तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। अगर मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक ऑप्शन है डिप्रेशन के लिए। इफ़ द पर्सन इज़ वेरी सुसाइडल, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिप्रेशन। अब जैसे कुछ नई टेक्निक्स भी आ गई है, जैसे RTMS नाम का एक टेक्निक है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डिप्रेशन के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के लिए, या फिर OCD जैसे डिसऑर्डर्स के लिए। और ये सब चीज़ें हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि काउंसलिंग, थेरेपी एंड ये सब चीज़ें जो इंटरवेंशनल चीज़ें, इनका अगर कॉम्बो यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर, जैसे आपने बोला है ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो एक सोसाइटी में टैबू है कि ये जो डॉक्टर्स है ये पेशेंट को शॉक देते हैं और इससे पेशेंट ठीक होता है। तो ECT बस शॉक देना है या इससे कहीं और ज़्यादा चाहिए? नहीं, ECT इज़, मैंने जैसे बोला कि इट इज़ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ना, एंड इट इज़ वेरी सेफ ट्रीटमेंट। पहले ऐसा होता था, बेसिकली क्या हुआ है कि जो भी सोसाइटी का जो इम्प्रेशन बना है ECT के बारे में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मूवीज़, है ना। जो मूवीज़ थी उसमें जिस तरह से ECT को प्रेजेंट किया है ना, वो एक्चुअल वे नहीं है ECT का, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती कि उसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन होता है, जैसे मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन होता है, तो वही इम्प्रेशन लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन ECT क्या है कि इट इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर। जैसे ECT के प्रोसीजर में एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए वो सब करवाए जाते हैं। अगर ये पता चल जाता है बाद में इन्वेस्टिगेशन की कि दैट पर्सन इज़ फिट इनफ टू गो अंडर द प्रोसीजर, तभी उसको ECT दिया जाता है, वो भी एकदम प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। उसमें ऐसा होता है कि ECT का एक मशीन होता है जिसमें कुछ सेटिंग्स होती है, जिसमें हम लोग करंट का जो कैलकुलेशन वो करते हैं, और एक बैंड होता है जो यहाँ टेम्पोरल रीजन पे, ये जो दो साइड से यहाँ पे रखा जाता है, और एक करंट पास कर दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट को हल्का सा कन्वल्जन आता है और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। तो ये जो थेरेपी है बहुत ही सेफ है और इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। अगर सीवियरली डिप्रेस्ड पर्सन है, सुसाइडल है, उसको ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी काम आती है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर मुझे कभी लाइफ में डिप्रेशन हो जाए तो आई वुड प्रेफर ECT एज ए फर्स्ट ट्रीटमेंट। वो इतनी सेफ ट्रीटमेंट है। अगर मेरे घर में किसी को डिप्रेशन हो जाए सीवियर, वो सुसाइडल हो जाए, तो मैं वही ट्रीटमेंट प्रेफर करूँगा। इतनी अच्छी और इतनी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ECT है। तो मतलब ECT के बारे में जो भी सोसाइटी में इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं मिथ्स है, तो दे आर ऑल मिथ्स एज यू सेड। बिल्कुल बिल्कुल। ECT इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। Sir, for the viewers, any experience during your practice which you would have came across, आप शेयर करना चाहोगे जिससे the patient को मतलब फ़ायदा हुआ है उसको काउंसलिंग का? He was refraining from coming to you, but after the proper treatment and counseling, he is good enough and he is doing well in his life. I can share one patient's history or his scenario कि मैंने देखा था एक 16 year old बच्चा था, तो ही वॉज ब्रॉट टू मी बाय हिज पेरेंट्स। उसको इसलिए लाया गया था कि वो खुद को हैंग करने की कोशिश कर रहा था और वो पेरेंट्स ने नोटिस कर लिया, तो फॉर दैट मैटर ही वॉज ब्रॉट टू मी।
बट उसके साथ जब बात हुई और उसको मैंने जब काउंसलिंग सेशंस में लिया, थेरेपी सेशंस में लिया, तो इनिशियली ही वाज वेरी डिफेंसिव, ही वाज वेरी रिलक्टेंट टू टॉक टू मी। वो होता है नॉर्मली, वो जब डिस्टर्ब होते हैं बच्चे तो उनके लिए ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वो डिपेंड करता है काउंसलर की स्किल्स पे कि वो कैसे उनसे बात करें। बट आफ्टर 2-3 सेशंस आई केम टू नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ही वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल इन एनिमेशन। ओके, ठीक है ना। और वो डॉक्टरी की जो नीट का जो प्रिपरेशन है वो अभी कर रहा था, बट उसका इंटेंशन था, उसके जो एम्बिशंस थे वो अलग थे। और उसका जो गोल था वो ये था कि मैं एक एनिमेशन में कुछ करूं, बट वो कर रहा था नीट का प्रिपरेशन। ठीक है। और उसको ये लग रहा था कि उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि उसने डॉक्टर बनना चाहिए, है ना। और पेरेंट्स को ये लग रहा था कि डॉक्टर बनना उसका एम्बिशन है। ठीक है। तो दोनों में जो कम्युनिकेशन का जो गैप था वो बहुत बड़ा था। और उस कम्युनिकेशन की गैप की वजह से क्या हुआ कि उसके जो थॉट्स है वो बहुत अलग हो गए। उसको लगा कि अब मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, डॉक्टरी का जो भी है, नीट का जो प्रिपरेशन वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मुझे करना था, जो मैं करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो उसका गोल ब्लॉक हुआ, उससे उसको फ्रस्ट्रेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग सुसाइडल। ये जब बात मुझे पता चली तो देन आई टॉक टू हिज पेरेंट्स, तो दे वर शॉक्ड कि हमें पता ही नहीं कि उसको क्या लगता है। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि कम्युनिकेशन का जो पार्ट है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था, और मैं हर टाइम पे ये शेयर करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। ये एक अच्छा सा केस था जो मैं शेयर करना चाहता था। सर, कोई एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, या पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, या अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, या फिर कोई टीचर अपने स्कूल उनके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, जो कि ये कम्युनिकेशन गैप जो है उसे ब्रिज कर पाए? कम्युनिकेशन गैप ब्रिज करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, है ना। इट इज़ वेरी सिंपल। आप क्या करो कि अगर आप पेरेंट हो तो यू स्पेयर सम टाइम, है ना। आपका जो भी काम है आपका, आप थोड़ा सा तो टाइम निकाल ही सकते हो। हाँ, बच्चों को जो है पेरेंट्स का 24/7 टाइम नहीं चाहिए, है ना। और वो बोल भी नहीं सकते कभी मुझे आपका टाइम दो, है ना। टाइम देना मतलब आपको सिर्फ उनके साथ में रहना है। 1 घंटा है, 2 घंटा है, जो भी, आप सिर्फ टाइम स्पेंड करो, कम्युनिकेशन अपने आप चालू हो जाएगा, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, as we are heading towards intelligence, like artificial intelligence we are saying, or like there are many kind of people say about emotional intelligence. Sir, so how would you help us to gain knowledge or to aware us and our audience about the word emotional intelligence and how much it's helpful in today's era? इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। जैसे बोला जाता था कि जो जनरल इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नाउ डेज व्हाट हैज़ हैपेंड कि लोगों को पता चल रहा है कि दोज हु आर इंटेलेक्चुअली साउंड एंड हु आर सक्सेसफुल, है ना, एज इन करियर, है ना, बट दे आर नॉट इन पोजिशन टू हैंडल देयर ओन इमोशंस, और जो उनके कलीग्स है, उनके जो रिलेशंस में जो लोग हैं, उनके इमोशंस को हैंडल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। और जहाँ पे वो पहुँचे हैं, सक्सेस की जिस पोजीशन पे वो पहुँचे हैं, वहाँ वो सक्सेस शेयर करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट, है ना। कि आप इमोशनली खुद को कैसे देखते हो, आप खुद के इमोशंस रीड कर पाते हो कि नहीं, है कि नहीं, आप सामने वाले के इमोशंस रीड कर पाते हो कि नहीं, और उससे वो इमोशंस रीड करने के बाद उनके साथ आप वैसा बिहेव करते हो कि नहीं, ये जो पार्ट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। खुद के इमोशन जानना, दूसरे के इमोशन जानना, समझना, और वो जो इंफॉर्मेशन वो रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए यूज़ करना, यही एक शॉर्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं, है ना। जनरल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है, एक सर्टन एज तक जाएगा, वहाँ वो रुक जाएगा, उसके आगे उसको कुछ नहीं कर सकते, वो गिफ्टेड है, वो जीन्स से डिसाइड होता है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है वो हम लर्न कर सकते हैं, वो सीखने वाली चीज़ है ना।
प्रॉपर ट्रेनिंग से, प्रॉपर गाइडेंस से वो चीज़ हम लोग सीख सकते हैं. यही एक मेजर डिफरेंस है. अगर किसी को करियर में, रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाना है तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. So being emotionally intelligent is far different than being emotionally strong or knowing how to deal with the emotions. इमोशनली स्ट्रांग ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है एक्चुअली, है ना. ये तो कॉमन कन्वर्सेशन में ऐसा यूज़ करते हैं. फिजिकली स्ट्रांग जो है वो लोग देख सकते हैं, है ना. लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना, वो वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. उसका मीनिंग समझना, जनरली हम लोग उसका मीनिंग क्या लेते हैं कि द पर्सन हु इज़ डीलिंग विद द इमोशंस प्रॉपरली, अपने हिसाब से, तो वो इमोशनली स्ट्रांग. बेसिकली हु इज नॉट क्राइंग, हाँ, हु इज़ नॉट क्राइंग वो इमोशनली स्ट्रांग. बट ऐसा नहीं है. इमोशनली स्ट्रांग की जगह पे हम लोग इमोशनली बैलेंस्ड, ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रॉपर है. So as every conversation or every podcast has a rapid fire round, sir, so I would like to start our rapid fire. Sir, in this rapid fire I would give you some sentences and you would have to just complete the sentence. So our first sentence would be, a strong student is someone who understand his or her emotions. One sentence for the students who are watching the podcast. One sentence, seek help whenever needed. And a struggling teenager in today's era needs to communicate. And one sentence or one advice for the parents or the guardians which you would like to give. Talk to your children. Thank you so much, sir, for today's conversation. Thank you so much for inviting. We cannot control every exam result. We cannot avoid every comparison. We cannot stop every heartbreak. But what we can do is stop pretending. Today, if you are tired, say it. If you are overwhelmed, share it. If you are not okay, seek help. Tonight, just don't scroll. Pause. Look into your heart. Do what your soul says to you. Do whatever you feel is right to do. तुम्हारी लाइफ तुम्हारे मार्क्स से काफ़ी बड़ी है. तुम्हारी वर्थ या तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मिस्टेक से भी काफ़ी बड़ी है. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट्स ओके नॉट टू बी ओके. विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू टुडेज पॉडकास्ट ऑफ मेड एंड माइक्स एपिसोड 1. आई वुड लाइक टू थैंक आवर टुडेज गेस्ट एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स to stay tuned for more such interesting episodes. Thank you.